تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا۔ شب قدر کی فضیلت جانیں گے تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ تو 2-4 منٹ کچھ اس پر بھی گفتگو ہو جائے تاکہ ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے کہ آج کی پوری رات ہم اللہ کی عبادت میں صرف کریں۔ شب قدر حضور علیہ السلام کی چاہت پر اللہ نے عطا فرمائی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک افسردگی تھی کہ اللہ نے دوسرے انبیاء کی امت کو اتنی عمریں عطا کی، کوئی 1200 سال کا ہوا، کوئی 1000 سال کا ہوا، کوئی 500 سال کا ہوا، میری امت کی عمر کم ہے۔ تو اللہ نے محبوب کی افسردگی دیکھ کر کے جبریل کو بھیجا اور ارشاد فرمایا، حبیب تم افسردہ نہ ہونا، اگر ہم نے ان کو 1200 سال کی 500 سال کی عمر دی ہے تو آپ اس پہ افسردہ کیوں ہیں؟ عرض کی مولا وہ 1200 سال کی عبادت لائیں گے اور میری امت 60-70 سال کی عبادت لائے گی، تو دونوں برابر کیسے ہوگی؟ میری امت پیچھے ہوگی اور وہ عمل کے میدان میں آگے ہوں گے۔ ارشاد ہوا، حبیب ان کو عمر لمبی دی ہے، تجھے وقت لمبا دیں گے۔ وہ اس طرح سے کہ تیری امت کو ماہ رمضان میں ایک رات عطا کریں گے جو شب قدر ہوگی، اور اس رات جو عبادت کرے گا اس کو 80 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کریں گے، یعنی وہ رات 1000 مہینے سے افضل ہوگی۔ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ تو اب کیا ہوگا؟ اگر وہ 1200 سال کی نیکیاں لائیں گے تو وہ 1200 سال کے گناہ بھی تو ساتھ میں لائیں گے، لیکن پیارے تیری امت آگے بڑھے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے گناہ تو 60-70 سال کے ہوں گے اور نیکیاں ہزاروں سال کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک انسان کو ہر سال 10 سال بھی مسلسل لیلۃ القدر مل جائے تو اس کی نیکیاں کتنی ہو گئی؟ 1000 مہینوں سے بہتر تو ایک ہی رات ہے۔ تو اب اگر اس کو 10-15 راتیں قسمت سے مل جائے، اور وہ خوش نصیب جس کو 60-70 مرتبہ یہ رات مل جائے، پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ تو اس لیے اس رات کی بڑی برکت ہے۔ اور ایک مرتبہ صحابہ کرام گفتگو کر رہے تھے کہ شب قدر کب ہے؟ تو چونکہ حدیث ہے کبھی 21 کو ہوتی ہے، کبھی 23 کو ہوتی ہے، کبھی 25 کو ہوتی ہے، کبھی 27 کو ہوتی ہے، کبھی 29 کو ہوتی ہے۔ ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے، ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جب سب اپنے اپنے اقوال پیش کر رہے تھے تو حبر الامہ سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے۔ آپ چپ تھے، خاموش تھے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم کہتے تھے کہ جس محفل میں عبداللہ ابن عباس ہوں پھر انہی کو حق پہنچتا ہے کہ وہی فتویٰ دیا کریں، وہی بات کیا کریں۔ سب بولتے ہیں آپ کو حق ہے، آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ بولیے، آپ کے بولنے پہ کوئی پابندی نہیں، آپ بولیے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا، اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو بات یہ ہے کہ پوری کائنات ساتھ پہ گھوم رہی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ کیا کہتے ہیں؟ پوری کائنات 7 پر گھوم رہی ہے۔ کیسے؟ 7 آسمان بنائے اللہ نے، 7 زمین بنائی، 7 دن بنائے۔ اسی طرح جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں حج میں تو وہ بھی کتنی ہیں؟ 7 ہے۔ اسی طرح انسان کو جتنے رنگوں سے پیدا کیا گیا اس میں ملاوٹ بھی 7 ہے۔ اسی طریقے سے جن اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے ان کی تعداد بھی 7 ہے۔ اس طریقے سے 7 7 7 7 گنائیں، سمندروں کی تعداد بھی 7 ہے۔ تو فرمایا کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ شب قدر بھی 7ویں رات میں، شب قدر بھی رمضان شریف کے آخری عشرے کی 7ویں رات میں، مطلب کب ہے؟
27वीं तारीख को। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का कौल भी यही है कि शबे कदर हर साल कब होती है? 27वीं तारीख को। और शबे कद्र में जो हिया है ना, हिया, ये 27वां कलमा है। हिया मतलब ये, इसमें हिया मतलब शबे कद्र के हवाले से हत्ता मतलईल फज्र, कि इस मुबारक रात में फज्र तक क्या होता है? सलामती नाजिल होती है, सुबह तक। तो ये जो हिया है ना, हिया, ये हिया 27वां कलमा है। तो पता चला कि वो हिया बता रहा है कि 27वीं ही को शबे कद्र होती है। तो फिर ये 21, 23, 25, 27, 29 का ये जो कौल है, उसमें बुजुर्गों ने फरमाया हिकमत ये है कि बंदा शबे कदर की लालच में हर रात इबादत करता रहे, ताकि इबादत का मियार बढ़ जाए। अगर बता दिया जाता कि 27 ही को यकीनी है, तो फिर बंदा सिर्फ 27वीं को इबादत करता, 21वीं को क्यों करता, 23वीं को क्यों करता, 25 को क्यों करता, 29 को क्यों करता। तो जो हदीसें हैं वो बिल्कुल हक हैं कि ताक रातों में होती है, किसी एक रात में घूमती रहती है। लेकिन अक्सर बुजुर्गों का कौल ये है कि शबे कदर अक्सर 27वीं को होती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 27वीं शब है, और आज अल्लाह की अता से शबे कद्र है। हम यही उम्मीद है, और हदीस भी है कि अल्लाह से बंदा जैसा गुमान करता है अल्लाह उसको वैसे ही अता करता है। तो जिस रात आप दिल की गहराइयों से शबे कद्र समझकर इबादत करें, बस वही रात हमारे लिए शबे कद्र है। शबे कद्र में दुआएं मकबूल होती है, कबूल होती है, और हर ताक रातों में इबादत करना चाहिए। लेकिन शबे कद्र जो 27वीं शब है उसमें ज्यादा इबादत करना चाहिए, क्योंकि उस रात जिब्रील अमीन फरिश्तों को लेकर आते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उनके पास 4 झंडे होते हैं। वो 4 झंडे लेकर के फरिश्ते आते हैं, और वो 4 झंडे लेकर के आते हैं और वो बस्तियों में घूमते हैं और उन लोगों से मुलाकात करते हैं जो लोग उस वक्त इबादत में मसरूफ होते हैं। सोने वालों से नहीं मिलते, खेलने कूदने वालों से नहीं मिलते, भंकसबाजी करने वालों से नहीं मिलते। किन से मिलते हैं? जो इबादत में मसरूफ रहते हैं उस रात, और उनसे वो मुसाफा करते हैं और उनके लिए सलामती की दुआ करते हैं। और फिर जब वो आसमानों पे जाते हैं तो पहले आसमान के फरिश्ते पूछते हैं कहां से आ रहे हो? तो जिब्रील अमीन और जो दूसरे फरिश्ते आते हैं वो कहते हैं हम शबे कद्र में गए थे, उम्मत मोहम्मदिया से मिलने के लिए गए थे और उनसे मुलाकात के लिए गए थे। तो उस वक्त वो फरिश्ते पूछते हैं तुमने किस हालत में उम्मत मोहम्मदिया को पाया? तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमने उन्हें रुकू में पाया, सुजूद में पाया, तस्बीह में पाया, अल्लाह की हम्द करते हुए पाया, उनको अल्लाह की तस्बीह और तकदीस बयान करते हुए पाया, वो औसाफ बयान करते, तिलावत कुरान करते हुए पाया, हमने दुआएं करते हुए उन्हें पाया। इस तरह की वो तफसील बयान करते हैं। और फिर क्या बड़ी प्यारी बात कहते हैं, फरमाते हैं जो नेक लोग थे उम्मत मोहम्मदिया के, अल्लाह ने उन सबको बख्श दिया, और जब नेकों को बख्श दिया, इबादत करने वालों को बख्श दिया, तो अल्लाह ने इबादत करने वालों के तुफैल में गुनहगारों को भी बख्श दिया। यानी सबकी बख्शिश हो गई, सबकी निजात हो गई। सोने वाले किसके सदके बख्शे गए? इबादत करने वालों के सदके बख्शे गए। तस्बीह न करने वाले किसके सदके बख्शे गए? तस्बीह करने वालों के सदके बख्शे गए। लेकिन वो बख्श तो दिए गए, मगर फरिश्तों से मुलाकात का शरफ किसको हासिल हुआ? उनको, जो लोग इबादतों में मसरूफ रहे। तो अल्लाह ताला आपको, हम सबको बार बार शबे कद्र अता फरमाए। लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगानी का क्या भरोसा? हम क्या कह सकते हैं? जिंदगी को पता नहीं आइंदा साल शबे कदर मिले ना मिले। इसलिए आज की रात कसरत के साथ इबादत कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, तस्बीह पढ़िए, इस्तिगफार पढ़िए, कलमा शरीफ पढ़िए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खूब खूब दुआएं कीजिए, ताकि उसकी बरकतें आपको, हम सबको नसीब हो सके। उम्मीद करता हूं कि आप सब पूरी रात
दुआ में गुजारेंगे, इबादतों में गुजारेंगे, रब तबारक व तआला को मनाने की और उसको राजी करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से खूब मांगो। आज मिलने की रात है, आज की रात 1000 महीनों से अफजल और बेहतर रात है। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें अल्लाह आपको हम सबको जरूर नसीब फरमाएगा। अल्लाह से मांगिए, अल्लाह आज की रात हम सबकी बुरी तकदीरों को भली कर दे। अल्लाह आज की रात हमारे सोए हुए मुकद्दरों को बेदार कर दे। अल्लाह आज की रात हमारी तमाम जायज़ मुरादें पूरी कर दे। और अल्लाह आज की रात अल्लाह से खास दुआ ये है कि मौला हमें ऐसा बना दे जो तुझे पसंद हो, हमें ऐसा बना दे जो तेरे रसूल को पसंद हो, हमारी जिंदगी ऐसी बना दे जो तुझे और तेरे महबूब को पसंद हो, और हमारी मौत ऐसी हो मौला कि जब तू राजी हो, तेरा हबीब राजी हो, तो कलमा पढ़ते पढ़ते हमें इज्जत और शहादत की मौत मदीने मुनव्वरा में नसीब फरमा, तेरे महबूब के हरम में नसीब फरमा, और 2 गज जमीन तेरे महबूब के कदमों में दफन होने के लिए अता फरमा। आज की रात इंशाअल्लाह हर ताक रातों में इसी मस्जिद में सलातो तस्बीह का एहतिमाम किया जा रहा है, और आज की रात भी इंशाअल्लाह ये एहतिमाम होगा। टाइम क्या होगा? कोई जिम्मेदार यहाँ मौजूद है जी? अच्छा, रोज आना शायद 1:30 पौने 2 बजे का टाइम है, तो शायद आज भी ये टाइम हो, जो भी आप अपने जी आज 1 बजे का टाइम है। अच्छा, आज 1 बजे का टाइम है। आपसे गुजारिश है, अगर अल्लाह ने आपको वक्त दिया है तो आप क़यामुल लैल के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएं और अपनी रात को अल्लाह की इबादत में गुजारने का शरफ हासिल करें। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाएं, सब की बख्शिश फरमाएं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो मैं क्या करूं? तो हुजूर ने फरमाया था, एक दुआ बता देता हूं, वो दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ आज रात कसरत से पढ़े। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, हमारे मरहूमीन को माफ़ फरमाए। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। इस माह रमजान के सदक़े तुफ़ैल से, सब कद्र के सदक़े तुफ़ैल से सारी मुसीबतें, आफतें, बलाएँ दूर कर दे। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।